So here now students, this is the third chapter of the statistics for economics known as the collection of data. So collection of data means, as we have read in the previous chapter, that the data are of many types. Okay, we have read the scope and the importance of statistics. Huh? So now for the use of the statistics, we need the data. So from where we collect the data? So the data that is being collected is divided into two parts, as it is given in your book also, page number 3.2. This is the internal source and the external source. Just I'm sharing the screen. Okay. So the sources of data are of two types. First is the internal source. And the other one is the external source. So internal source of data means when the data is available within the institution, that is known as the internal source of the data. For example, as I have told you that if and from our school we need the data of 2015, 16, 2010, we will get easily, okay, because or we need the data of how much was the fee structure, or how many students were there, how many teachers were there, okay, when the building was built. So if the data is available within the institution, that is known as the internal source. But when the data is available outside the institution from some other sources other than the organization, we have to collect the data, that is known as the external source of the data. Now, after this internal and external, again, we are coming to the external source of data. Under the external source, we are studying about the primary data and the secondary data. Okay. First is the primary data, because internal is available within, so it has no types. Okay. So other one is primary data and the other one is the secondary data. Okay. So primary data is the data which is collected by the investigator himself. Is the data which is originally collected by investigator or agency for the first time for specific purpose. हम किसी कारण से जब एक डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। जैसे कि अगर हम अपनी कक्षा की पॉपुलेशन हम खुद कलेक्ट करते हैं, या हम अपने स्कूल में अपने क्लास के बच्चों की मार्क्स इकट्ठे करते हैं ना, तो ये क्या हुआ हमारा प्राइमरी डेटा। हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं डेटा और जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। जिसमें एग्जांपल दी पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Now, other one is the secondary data. Secondary data is a data is also known as the second hand data. यानी कि जब कलेक्ट किसी और ने किया है और यूज कोई और कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा होता है, ये जो है हमें कहीं से भी अवेलेबल है, इंटरनेट से भी अवेलेबल है, हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी अवेलेबल है। अब जैसे मुझे जो है म्यूनिसिपैलिटी से पता करना है कि 2015 में कितनी पॉपुलेशन थी ना, तो ये अगर मुझे चाहिए और पहले किसी और ने कलेक्ट कर रखा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, just example is given as national account statistics published by CSO, economic survey published by government of India, या कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं इंटरनेट से, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी डेटा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। मेन हमारे जो ये है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो अब हम जो है सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अभी मैं इसको जो रिमूव कर रही हूँ। नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा। हम कैसे कैसे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। पहला इसमें पार्ट है ए पार्ट। A part is direct personal investigation. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है कि जब हम खुद जाकर खुद से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, हर एक जो एन्यूमरेटर है वो खुद ऑन द स्पॉट इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें आपने मेरिट्स डिमेरिट्स याद नहीं करने हैं, इट्स बी टू लॉन्ग। ठीक, हाँ बस हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम छोटा एरिया हो तो हम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल है, हम यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये रिलायबल होती है क्योंकि हमने खुद इकट्ठा किया है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, गलत तो नहीं है ये। ठीक, तो जब हम डेटा को खुद जाकर के इकट्ठा करते हैं, ऑन द स्पॉट इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। or indirect oral investigation. Indirect oral investigation means जबकि डेटा आपके पास में इनडायरेक्टली अवेलेबल है, यानी कि आप
हर एक बंदे से इंक्वायरी नहीं करी गई है। मान लीजिए 10 लोगों की इंक्वायरी एक से करी गई है ना। अब जैसे आपकी कॉलोनी में जो है इंक्वायरी करने के लिए आते हैं कितने कितने लोग हैं, हर एक के घर नहीं गए, एक जने से बैठ करके पूछते हैं ऐसे घर में कितने जने, ऐसे घर में कितने जने, ऐसे घर में कितने जने, कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, कितने लोग कमाते हैं। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जबकि आपने हर एक इंडिविजुअल से खुद नहीं करी है, खुद हर एक से नहीं करी है, एक जने से हमने सबके बारे में इंक्वायरी ले ली है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओके, ये हुआ हमारा सेकेंड। थर्ड वन इन दिस इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। अभी क्या होता है, जब आप कॉरेस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, कलेक्ट सेंड देम टू द इन्वेस्टिगेटर। जैसे कि अब आपने ये यूज कौन करता है, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस एंटरप्राइजेस। सपोज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इंटरेस्टेड इन द डिमांड forecast of variety of clothes. The correspondent are asked to collect the information on different types of clothes and quantity purchased by some selected families or quantities sold in some reputed shops every month. These data are sent to the investigator. अब correspondent कौन होते हैं, जैसे कि कोई भी एजेंट जैसे होते हैं। जैसे अगर आपको ये पता करना है कि मार्केट में कौन सा कपड़ा चलता है, आपकी कपड़े की फैक्ट्री, आप सोचे कौन सा कपड़ा चलता है, मैं उसके हिसाब से प्रोड्यूस करूंगी। तो अब आपने क्या करा, जो इन्फॉर्मेशन है आपने किससे ली, आपने कुछ फैमिली से ली कि वो लोग क्या कपड़ा पसंद करते हैं, किस तरह कपड़ा पसंद, आपने उसके बेसिस पे अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज कर लिया। तो ये क्या हुआ, आपने सबसे इन्फॉर्मेशन नहीं ली है, कॉरेस्पॉन्डेंट ने उन कुछ सिलेक्टेड फैमिली से इन्फॉर्मेशन लेकर के आपकी फैक्ट्री तक पहुंचा दी है। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन थ्रू द कॉरेस्पॉन्डेंट। ओके, या फिर जैसे न्यूज रिपोर्टर होते हैं, ये भी इसका एग्जांपल है। दिस इज वाइडली यूज्ड बाय न्यूज चैनल्स टू कलेक्ट द न्यूज इंफॉर्मेशन। अब देखिए दिल्ली में इतने दंगे कहीं पर भी कोई दंगे हो रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन तब की तब इकट्ठी होती है, तो वहां से सारी इन्फॉर्मेशन, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है ना, पुलवामा अटैक जब हुआ था। तो ये जो मेनली न्यूज चैनल्स वाले इस मेथड को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द टेलीफोनिक इंटरव्यूज। अब इस टेलीफोनिक इंटरव्यूज में क्या है, आप टेलीफोन से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप खुद तो जा नहीं रहे हैं, ना ही आप किसी से पता कर रहे हैं, आपको जितनी जरूरत है आप जो है फोन पे इंफॉर्मेशन जो है ले रहे हैं। जैसे अब जब पोल्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं ना, तो एग्जिट पोल कैसे, वो मीटिंग चल रही होती है, फोन पे पूछते रहते हैं सबसे क्या क्या रहा है ना। तो इस तरीके से जब आप फोन के थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, टेलीफोन के थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टेलीफोनिक interviews. And next one is mailed questionnaire method. अब मेल क्वेश्चनरी मेथड में क्या है, आप जो है क्वेश्चनरी मतलब होता है एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाना जिसमें कि इजीली कोई रीड कर सकता है क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस को आप जो है उसको मेल कर रहे हैं और आप दूसरे बंदे को उसको आंसर करना है। ये जनरली हम यूज करते हैं मेथड सर्वेस करने के लिए ना, जब सर्वे किए जाते हैं ना तो उसको हम जो है यूज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चनरी दे रखा है आपको पेज नंबर 3.919 पर, यस नो है, डू यू हैव अ कार, आर यू इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज, हाउ डू यू नॉर्मली रीच टू योर स्कूल, बाय वॉक, बाय बस, टू व्हीलर, कार ना, आर यू मैरिड, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आर यू अनएम्प्लॉयड। इस तरीके से जब हम एक क्वेश्चनरी, ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है ना, पेज नंबर 3.15 पर। तो इस तरीके से जब हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, ये प्राइमरी डेटा में मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द सेंसस एंड द सैम्पलिंग मेथड। अब सेंसस में क्या है, सेंसस मेथड वो होता है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन हर एक इंडिविजुअल से इकट्ठी करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन का होता है ना, पॉपुलेशन में हम सब कुछ इकट्ठा करते हैं ना, खाली ये नहीं होता कि, और हर एक इंडिविजुअल से इकट्ठी कर जाती है इन्फॉर्मेशन, हर एक के घर जा करके। अभी 2021 में सेंसस मेथड यूज किया जाएगा, पॉपुलेशन को इकट्ठा करना है, काउंट करना है कितनी पॉपुलेशन है। तो जब हम हर एक इंडिविजुअल से ऑल ओवर द कंट्री, या जितना भी हमारा इन्वेस्टिगेशन का एरिया है, जब हर एक से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसस मेथड। और नेक्स्ट वन यहाँ पर है, ये भी एक टेक्निक है, पहले वाली भी टेक्निक थी। नेक्स्ट इज द सैम्पलिंग मेथड।
सैम्पलिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम पूरी डेटा से इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, कुछ सैंपल्स के बेस पे हम रिजल्ट दे देते हैं। जैसे कि अगर आपकी मम्मी को ने चावल बनाए हैं और देखने हम पके या नहीं पके हैं, तो वो हर एक चावल को हाथ नहीं लगाएंगी, वो 2-3 चावल देख करके बता देंगे हाँ चावल पके हैं कि नहीं पके। तो एक सैंपल के बेसिस पे हमने रिजल्ट दे दिए। तो वो क्या कहता है सैम्पलिंग मेथड। क्यों? क्योंकि ये सैम्पलिंग में क्या होता है, हम छोटे बेस पर ही पूरा रिजल्ट दे देते हैं और सैम्पलिंग को हम ज्यादा साइंटिफिक मानते हैं। सेंसस को हम तब यूज करते हैं या तो मैं बहुत टाइम बाद कर रही हूँ या फिर हमारा इन्वेस्टिगेशन का एरिया छोटा हो। वैसे तो पॉपुलेशन काउंट करने के लिए सेंसस मेथड ही यूज करते हैं, लेकिन अब ये है कि सेंसस मेथड 10 साल में यूज हो रहा है, हर 10 साल में होता है। पहले होता 2011 में, अब होगा 2021 में। तो इस तरीके से ये होते हैं सेंसस मेथड एंड द सैम्पलिंग मेथड।